Thank you so much, Amber. My name is Ahmed Siddiqui, and I'm the founder and CEO of Overhead Optimize. So, we are a lead generation expert and digital marketing agency that helps LinkedIn personal brands to scale. The three primary elements that are involved in LinkedIn personal branding are profile optimization, content strategy, and outreach essentially. So these three are the services that we are providing at Overhead Optimize, and that is part of the reason why I feel confident in speaking about these particular skills. I'm just going to share the document that I prepared for this seminar. Let me know if you guys can see my screen. Yes, your screen is visible, Ahmed. Thank you for the confirmation. I started off this journey some 6 to 8 months ago, and also my first agency थी e-commerce related. So I used to do Facebook drop shipping, and also my primary sort of clientage was through Fiverr and Upwork, but um, it wasn't quite sustainable, I would say. The clientage wasn't streamlined, and उसमें ये कभी you would get a lot of clientage, and on other months you would see nothing at all. So it wasn't sustainable. So for that reason, as far as the longevity of that agency was concerned, it was, I would say, 1 या 2 साल मैंने उसको run किया, and then I had to quit that. So it was around that time that I was introduced to the concept of personal branding, and that is where my journey with LinkedIn lead generation essentially started. So around that time, it took plenty of iteration of testing to get to the point where I am on currently. और उस वक्त ये है कि मेरे पास LinkedIn प्रोफाइल थी, but उस वक्त मेरा ये मेंटालिटी थी कि it's just for the purpose of seeking jobs, and बस प्रोफाइल पड़ी हुई थी, and it was like a CV for me. But ये है कि when I was introduced to the concept of personal branding, that is when the entire uh, framework building and system building came into be. तो उसमें वही तीन चीजें जिन पर मैंने working की, I'm going to be sharing those. So in these 6 to 8 months, we have partnered with plenty of agencies and helped them in scaling their systems and in getting more leads. Essentially, what we do is we close leads, we help clients, we help agencies get their clients, and then we help them to get more deals done. So उसके लिए funnels हैं, उसके लिए we have content strategies, उसके लिए we have scripts, we have CRM, plenty of things that I'm going to be going over. So first of all, person branding का concept है क्या? It's basically a person behind a skill, behind a process. Let's say you do SEO, or you be known as a video editor. Like आपके लोगों को पता होना चाहिए कि this is what you are known for. So that to me is the concept of personal branding. और इसके अंदर जिस तरह से एक ब्रांड होता है, उसके अंदर एक लोगो होता है, उसका एक टाइटल होता है, उनका एक हेडलाइन होता है. तो इन अ पर्सनल ब्रांड, द लोगो इज योर फेस, एंड द brand name is your personal name basically, and the skill is what जो आपका product है, that is basically your skill. So that is a bit of introduction on personal branding. अब why is it needed? अब जिस तरह से मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मेरी पहली एजेंसी इसलिए फेल की बिकॉज आई वाजंट एबल टू सस्टेन दैट, एंड उसका प्राइमरी रीजन ये था कि क्लाइंटेज जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं था. अब इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जैसे फाइवर है या अपवर्क है, you're restricted on those platforms. Like वहां पर you do not have the freedom to reach out to people openly. इसी तरह से आप अपने contracts को establish नहीं कर सकते. There's plenty of presets that you have to conform to. लेकिन when it comes to platforms like social media platforms like LinkedIn, like Facebook, like Instagram, वहां पर you have freedom to be able to reach out to the people that you want to reach out to, and then you can uh, make deals based on your own. उनको क्रॉस प्लेटफॉर्म में और जगह पर भी लेके जा सकते हैं. लाइक आप उनको कैलेंडली का लिंक भेजकर यू कैन ब्रिंग देम ऑन टू अ कॉल, एंड देन यू कैन डू क्लोज डील्स ऑन टू दैट पर्टिकुलर कॉल. तो आपके पास जो सिस्टम्स हैं, प्राइसिंग है, फ्रेमवर्क्स हैं, दैट इज इंटायरली इंडिपेंडेंट टू योर ओन कंट्रोल. लाइक उसमें आपको जो है ना रिलाई नहीं करना पड़ता प्लेटफॉर्म के ऊपर, लाइक फाइवर एंड अपवर्क में. तो दैट इज द प्राइमरी रीजन दैट यू रिक्वायर और नीड पर्सनल ब्रांड. एंड देन वही बात है कि इसमें यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलेबिलिटी. लाइक इसमें जितना एफर्ट कोई वो नहीं है, लाइक एल्गोरिथम्स नहीं है, इसमें रैंकिंग नहीं हो रही. लाइक यू कैन नॉट से कि एक बंदे की गिग ऊपर आ रही है कि नीचे आ रही है. इसी तरह से प्रपोजल जब आप अपवर्क में सबमिट कर रहे हो तो इसके लिए आपको लिंक्स परचेज करने पड़ते हैं. एंड देन उसमें ये है कि कोई
काफी ज्यादा सैचुरेशन आ जाती है, काफी ज्यादा कंपटीशन आ जाता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग में इवन दो देयर इज कंपटीशन, बट आपके पास लेवल ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, यू हैव प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सप्लोर टू गेट मोर डील्स डन। तो दैट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई आई वुड सजेस्ट कि फॉर longevity it's better to have a personal brand. And I won't say instead of, because I would still say कि Fiverr and Upwork जैसे platforms को आप still use करें, because why cut off a platform that can help you bring more leads? And I would say कि go with a multi-directional approach where you're building your personal brand as well, and आपका Fiverr and Upwork के ऊपर भी service का जो आपका system एक बना हुआ है, you should go forward with that, because मैंने ये चीज देखी है, लोग generally advise कर रहे होते हैं, तो they say either choose this or this, so you don't have to choose between the two, you should use both of them to the best of your potential. That is going to be my advice. अब इसमें मैंने जिस तरह से 3 मॉड्यूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, फर्स्ट ऑफ इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। उस पे जाने से पहले वी कैन डिस्कस अ बिट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन। तो पहली चीज तो ये आ जाती है कि आपकी स्किल क्या है। तो इसमें 2 तरह के केसेस आते हैं। यू कैन ईदर बी अ पर्सन हु नोज एंड अंडरस्टैंड्स देयर स्किल ऑल टू वेल, लाइक उसमें आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, यू हैव केस स्टडीज, यू हैव पीपल दैट यू हैव एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स फॉर, तो दैट इज अ गुड साइन। लाइक उसमें ये है कि आपकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ अथॉरिटी एंड ट्रस्ट फैक्टर एस्टेब्लिश हुआ है, तो वो एक चीज, वो एक केस आ जाता है हमारे पास। एंड देन देयर इज पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड कि उनकी स्किल क्या है, लाइक वो किस चीज पर काम करना चाहते हैं। जनरली स्टूडेंट्स टेंड टू बी दोज पीपल जिनको थोड़ा सा एम्बिग्यूटी हो रही होती है कि यार हम किस चीज को लेकर उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। तो इवन दो थोड़ा सा इस सेमिनार के टॉपिक से हट गया, बट आई वांटेड टू एड्रेस दैट। तो उसमें आई वुड से कि एनालाइज मार्केट को देखें, एंड देन सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट थोड़ा इधर एडवाइस करना इज गोइंग टू बी अबाउट यूज केसेस। तो ऐसी सो वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट कितनी सारी यूज केसेस के अंदर हो सकती हैं। एक तो लेट्स से आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो यू लेट्स से अ स्पीकर हु वांट्स टू टॉक अबाउट लेट्स से लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में ही मैं एक पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं, एंड उसका कंटेंट मैं यूट्यूब पे बनाकर डालना चाहता हूं। तो आई कैन रिकॉर्ड द वीडियो बट आई कैन नॉट एडिट इट। तो जाहिर बात है उसके लिए मुझे एडिटर चाहिए। एक यूज केस यहाँ से आ गया आपके पास। इस तरह से यूट्यूब पर जाए, आपको मल्टीपल यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जिनको वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको आप through different channels reach out कर सकते हैं, whether that is through email, whether that is through YouTube comments or multiple other channels। तो वहां पर भी एक यूज केस आ गया। इसी तरह से you can look into studios, इसी तरह से मैरिज स्टूडियोज होते हैं, वहां पर भी you could have a need for a video editor। तो अब एक स्किल के अंदर multiple use cases आ गए, so that means you have multiple audiences that you can reach out to, and you can showcase your skills, you can give them your offers, and वहां से आपके पास closing की जो chances and opportunities है वो बढ़ जाती हैं। So some skills that I have come across with multiple use cases are Facebook ads, Google ads, ठीक है, marketing वाली side you can explore that। There's also SEO, there's also video editing as I mentioned। So that is for people who currently do not have any idea of what they want to move forward with in terms of their personal branding। इसके बाद आ जाता है आपका ब्रांड कलर्स। सो ब्रांड कलर्स इज एसोसिएटेड विद ब्रांड आइडेंटिटी। अब कोई भी ब्रांड होता है ना, कोई भी आप ब्रांड उठा के देख लें तो उसके पर्टिकुलर कलर्स होते हैं। अब फूड ब्रांड्स आप देखेंगे तो उसके अंदर येलो और रेड कलर्स यूज होते हैं, बिकॉज दैट दे आर नोन फॉर इंस्टिगेटिंग अ सेंस ऑफ हंगर। तो कलर्स के पीछे भी कोई सेंस ऑफ मीनिंग होता है। अभी पिछले दिनों वी ऑप्टिमाइज द प्रोफाइल ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो उसकी प्रोफाइल में द कलर्स दैट वी यूज वर light blue and green। that is associated with security, with a sense of peace of mind। तो you have to think over कि आपका जो ब्रांड है उसको कौन से कलर से सबसे बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब उसके अंदर 2 चीजें और आती हैं, नेम एंड लोगो। वो तो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, द नेम इज योर नेम एंड द लोगो इज योर फेस। तो अब इसमें आपको मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं, तो इफ आई कैन शो यू माय ओन प्रोफाइल हियर। जो कलर मैंने यूज किया हुआ है दैट इज ऑरेंज, एंड यू कैन सी कि उसकी यूनिफॉर्मिटी आपको बैनर के अंदर भी नजर आ रही होगी। तो we will speak more to this part later, but I just wanted to speak a bit to the color part, right? So moving on, funnels का concept आगे ज़्यादा explore होगा, but I just wanted to touch base on this a bit। funnels basically ये होते हैं कि जहाँ से आपका एक potential lead के साथ interaction हो रहा है, and वहाँ से what is the funnel that you are making them go through, and then you are taking them to the डन डील, या जहाँ पे आपकी डील क्लोज हो रही है, वो सारा प्रोसेस क्या है।
फाइवर की बात की जाए तो फनल क्या बनता है, लोग आप गिग देखते हैं, लाइक चलो गिग से स्टार्ट करते हैं, आप गिग बनाते हो, उसके बाद गिग पे आपको कोई रीच आउट करता है एंड देन आप उसके साथ बात करते हो, लेट्स से एक मीटिंग लगाते हो एंड देन मीटिंग के बाद आपकी ऑन बोर्डिंग हो जाती है एंड यू क्लोज द प्रोजेक्ट आफ्टर डिस्कसिंग दोस टाइमलाइंस। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फनल। अब लिंक्डइन ब्रांडिंग के ऊपर फनल्स कौन से हैं? दो ही फनल्स हैं, एक कंटेंट फनल है एंड एक आउटरीच फनल है। देयर आर मल्टीपल और भी होंगे बट मेनली इन्हीं पे फोकस किया जाता है। एक तो कंटेंट फनल है, वी आर गोइंग टू स्पीक टू दिस पार्ट इन द कंटेंट स्ट्रेटजी सेक्शन, एंड आउटरीच फनल जिसमें मेरी पर्टिकुलरली एक्सपर्टीज है, जिससे मैंने स्टार्ट ऑफ किया था लिंक्डइन की जर्नी, दिस इज रीचिंग आउट पीपल थ्रू कोल्ड डीएम्स। सो अगर हम कंटेंट की बात की जाए तो आफ्टर सेटिंग अप योर ऑफर, आफ्टर सेटिंग अप योर स्ट्रेटजी, आपको समझ आ गई कि आपकी स्किल कौन सी है, आपको समझ आ गई कि आपने पर्सनल ब्रांड किस चीज के अराउंड बिल्ड करना है। नाउ यू आर पुटिंग कंटेंट आउट देयर, लाइक आप पोस्ट लिख रहे हैं। अब उस पोस्ट में एजुकेशनल पोस्ट हो सकती है, लाइक यू आर टेलिंग पीपल के आपको एक चीज आती है, किस लेवल पर आती है, एंड देन यू आर एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी, एज अ ट्रस्टेबल पर्सन। लाइक जब आप अगले को ये बता रहे होते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, जिस तरह अभी मैं एड्रेस कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आई एम एस्टैब्लिशिंग माई सेल्फ एज एन अथॉरिटी बाय सेइंग कि मुझे इस चीज का आइडिया है, पता है। तो पोस्ट्स आर आल्सो परफॉर्मिंग लाइक दैट। पोस्ट्स आर कंटेंट रिटन फॉर अ सर्टेन टारगेट ऑडियंस, लाइक आप एक पर्टिकुलर लोग हैं जिनको एड्रेस करना चाह रहे हो थ्रू दोस कंटेंट। तो लेट्स से आपके नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसको आपकी स्किल की जरूरत है, तो ही इज गोइंग टू लुक एट द पोस्ट एंड ही इज गोइंग टू गेट एन आइडिया कि यार आपको ये काम आता है। तो बेस्ड ऑन योर ऑफर, लेट्स से वो उसको कंपेलिंग लगती है, दैट पर्सन रीचेज आउट टू यू। तो नाउ दैट पर्सन इज विद इन योर फनल, बिकॉज अब वो लीड वार्म अप हो गई है। लाइक बाय द बाय वार्म अप आई बेसिकली मीन कि उनको पता चल गया कि आपको ये चीज आती है। फिर यू ट्राई टू कन्विंस देम अ बिट, एक बार वो आपके साथ डीएम में आ गए, नाउ यू शेयर सम ऑफ योर बेस्ट वर्क, जो आपका पोर्टफोलियो होता है आप उनके साथ वो शेयर करते हो, एंड देन यू शेयर योर ऑफर एंड देन यू शेयर योर कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप ये शेयर करते हो कि आप जैसे और लोगों के साथ हमने काम किया था एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट वी प्रोड्यूस्ड। एक बार वो कन्विंस हो गया तो यू ब्रिंग देम ऑन टू अ कॉल। अब कॉल के लिए there are plenty of platforms that you can use. I prefer Calendly, मैंने Calendly पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, and then I have a calendar set up there जिसके अंदर hours हैं, and if someone wants to come over a call, तो ये है कि मैं उसका अपना कैलेंडर शेयर कर देता हूँ, तो वहां से कॉल बुक हो जाती है। एंड कॉल के ऊपर जब आप डायरेक्टली बात कर रहे होते हो ना, तो फिर कोई बैरियर्स नहीं होते। लाइक अगर आप चैट में बात कर रहे हैं ना, तो इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस, लाइक कोई बंदा किसी भी टाइम ऑफलाइन हो जाएगा, तो उसके लिए फिर लाइक आपको वेटिंग टाइम जो है ना दरकार होता है बीच में। लेकिन इफ यू इन अ कॉल एंड एक टाइम आप दोनों ने सेट किया हुआ है, तो आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन उसी प्रोजेक्ट के ऊपर है, तो आपकी जो क्लोजिंग अपॉर्चुनिटी, जो क्लोजिंग रेशियो है ना, बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये है कि आई वुड सजेस्ट टू फॉलो दिस पर्टिकुलर फनल फॉर कंटेंट। इसी तरह से अगर हम आउटरीच की बात करें, तो लेट्स से देयर इज एन इंडस्ट्री, लेट्स से मैं यूट्यूबर्स की बात कर देता हूँ, लेट्स वीडियो एडिटिंग की एग्जांपल मैंने चूंकि स्टार्ट में दी थी, तो उसी को लेके चलते हैं। तो मैं एक वीडियो एडिटर हूँ एंड आई वॉन्ट टू रीच आउट टू अ यूट्यूबर, तो मैं उसको रीच आउट करूंगा, उसको मैं ईमेल लिखूंगा या मैसेज लिखूंगा, और उसको मैं अपनी केस स्टडी शेयर कर दूंगा। उसको मैं कहूंगा यार ये मेरा बेस्ट वर्क है एंड आई फील लाइक दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर वीडियो एडिटिंग, एंड आई एम प्रीटी श्योर इन माय ओन स्किल्स कि मैं आपकी जो वीडियोस हैं इनको इंप्रूव कर सकता हूँ इन सर्टेन वे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे से कॉल पे आ जाए, वी कैन फर्दर डिस्कस इट। तो अगेन फनल वहां से वही बन जाएगा, वो कॉल पर आ जाएगा, यू विल ट्राई टू कन्विंस देम एंड देन डील डन। सो दीज आर द टू फनल्स दैट जो लिंक्डइन पर जनरली हम भी यूज करते हैं, जो यूज किए जाते हैं। इट्स वेरी मतलब अब थोड़ा सा लिंक्डइन को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको कॉमनली इस तरह के कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे लोगों के भी। फिर आ जाती है आपकी ऑफर। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड योर स्किल, नाउ दैट यू नो हाउ टू एंड हु टू सेल इट टू, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑफर क्या है। अब ऑफर होता क्या है, पहली चीज तो ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं, ये वर्ड हम बहुत ज्यादा सुन रहे होते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो इसमें ये होता है कि ऑफर इज बेसिकली अ प्रॉमिस, लाइक आप एक एग्जीक्यूशन प्रॉमिस कर रहे हो एंड इट्स बीइंग प्रॉमिस्ड विद इन realistic timeline, within a realistic budget, and if that does not happen, मनी बैक या कोई गारंटी आप उसको देते हो। जैसे मैंने ये एक ऑफर लिखी थी एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए कि वी आर गोइंग टू क्लीन अप योर बुक्स। ये वैसे बुक कीपिंग के पर्सपेक्टिव से दैट इज अ बिट डिफरेंट, एक नीश थोड़ी डिफरेंट है, बट अगर मैं आपको अपनी ऑफर बताऊं तो इट कुड बी समथिंग लाइक वी आर गोइंग टू बुक 20 कॉल्स इन 1 मंथ फॉर यू और मनी बैक। लाइक अब मैं उनको एक एग्जीक्यूशन प्रॉमिस कर रहा हूँ एंड उसमें मैं एक टाइम लाइन उनको दे रहा हूँ कि विद इन 1 मंथ की चीज में करूंगा, एंड अगर नहीं करता तो इधर मनी बैक, और दूसरी गारंटी इस तरह से होती है कि आई एम गोइंग टू वर्क फॉर यू अंटिल आई गेट टू दैट पॉइंट। ठीक है, उसमें फिर ये आप बाउंड हो जाते हो।
तो इस तरह की चीज ना कन्विंस करने में अगले को बहुत हेल्प आउट करती है, बिकॉज अगले को पता होता है कि यार ये बंदा जा कहीं नहीं रहा, भाग कहीं नहीं रहा, इसने जो प्रॉमिस मुझे किया है अपने काम को एग्जीक्यूट करने का वो ये पूरा करके जाएगा। सो दैट इज अ बिट ऑफ द ऑफर। अब ये जो एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पर्सनल ब्रांड को लॉन्च करने के लिए आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक होनी चाहिए। सो दिस इज अ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड्स टू दीज एलिमेंट्स। अभी इसको एग्जीक्यूशन स्टेज में लाने में जो चीजें दरकार है वो मैं आई एम गोइंग टू टच बेस ऑन दोस एज वेल। सो उसके बाद आ जाता है कंपैरेटर एनालिसिस। अब आपको कंटेंट की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी, आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहे हैं, मार्केट के अंदर लोग किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, लोग किन तरीकों से सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, किस किस्म का लाइक कल्चर चल रहा है, या क्या जो है वो बात चल रही है पर्टिकुलरली आपके उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, तो वो आपको कंपैरेटर एनालिसिस करने से पता चलता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कीवर्ड्स। जिस तरह वीडियो एडिटिंग है, तो अब वीडियो एडिटर को पता होंगे कि वो कुछ कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जो कि मैं लिंक्डइन पर सर्च करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट सर्च रिजल्ट्स फॉर पीपल हु डू वीडियो एडिटिंग। तो आपको वहां से आपके कंपैरेटर्स मिल जाएंगे एंड वहां से आप उनका लाइक कंटेंट एनालाइज कर सकते हैं, लोग क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं दो जो कि अगर आप भी करेंगे तो थिंग्स कैन वर्क आउट फॉर यू। सो कंपैरेटर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप उनकी ऑफर्स भी देख सकें, उनके फनल्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें बट नॉट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इधर, तो लेट्स से मैं इधर Amazon PPC की एग्जांपल अगर देता हूं, मैं अगर सिंपली Amazon PPC सर्च करूंगा ना, तो मुझे मल्टीपल लोग इधर ऐसे मिल जाएंगे जो कि ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी आपने अगर उसको फिल्टर डाउन करना है तो वी आर गोइंग टू गो ओवर द फिल्टर ऑप्शन एज वेल, बट वो आउटरीच पार्ट के अंदर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मल्टीपल लोग मिल रहे हैं दैट आर ऑफरिंग PPC सर्विसेज। अब अगर मैं इनको एक एक को खोल के देखूंगा तो इससे मुझे काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं PPC मार्केट के अंदर। तो दैट इज लाइक अ टेक्निक आप कह सकते हैं दैट यू कैन यूज फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। फिर आ जाता है आपकी नेटवर्क बिल्डिंग। अब एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लिंक्डइन को लेकर के, लोग जो है ना उनको जो बंदा नजर आता है वो उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, तो वो नेटवर्क बिल्डिंग नहीं होती। नेटवर्क बिल्डिंग जनरली इज कि आप सेगमेंट्स बना लें, व्हाट आर सम ऑफ द पीपल दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम एंड दोज दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम यू। ये दो चीजें आपने देखनी होती हैं। अब इसमें क्या सेगमेंट्स बन सकते हैं, एक तो ये जो आप की जो स्किल है ना उसके अंदर जो लोग फंक्शन कर रहे हैं, जिस समय वीडियो एडिटिंग की एग्जांपल दिया, Amazon PPC की एग्जांपल दी, लेट्स से मैं Amazon PPC कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जितने लोग हैं उनके साथ मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दे आर माई कंपेटिटर्स एंड वो मेरे कंटेंट को समझ सकते हैं, मैं उनके कंटेंट को समझ सकता हूँ। देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन माय प्रोफाइल। तो एक तो वो लोग होने चाहिए जो आपकी अपनी इंडस्ट्री के लोग हैं, एंड देन वहां पर एक चांस ये होता है कि लेट्स से आप उनके कंटेंट के साथ आप लेट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो आपसे सीनियर है उस फील्ड के अंदर, तो कभी कभार ना कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज भी हो जाती हैं। लेट्स से उनके पास प्रोजेक्ट्स एक्सेस में आ रहे हैं, उनके पास काम बहुत ज्यादा है आपसे, तो अगर तुमको लगता है ना कि you're someone who is really good at what you do, तो आपकी कोलैबोरेटिव डील्स हो जाती हैं। लाइक वो आपको जॉब ऑफर कर देंगे या फिर आपके साथ एक कोलैबोरेटिव डील कर लेंगे, आपसे काम करवा लेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो दैट इज हाउ थिंग्स कैन वर्क आउट फॉर यू। तो नेटवर्क बिल्डिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली यू टारगेट ऑडियंस, लाइक यूट्यूबर्स हो गए फॉर वीडियो एडिटर्स। इसी तरह से SEO करना है तो आप ऐसे बिजनेसेस को टारगेट करें जिनका आपको पता है कि वेबसाइट मैनेजमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस में ज्यादा काम है, तो यू कैन रीच आउट टू दोज पीपल, यू कैन कनेक्ट विद दोज पीपल, ताकि जब वो आपके कंटेंट को देखें एंड पढ़ें तो दे गेट टू नो अबाउट यू। अब जब आपके नेटवर्क में ऐसे लोग होंगे नहीं, तो फिर आपकी पोस्ट जो लोग पढ़ रहे हैं ना उनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। लाइक सिर्फ लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, दैट इज नॉट रियली एंगेजमेंट, दैट इज नॉट यूजफुल एंगेजमेंट। इसलिए मैं कुछ लोगों की देखता हूँ, लाइक उनके 200-300 लाइक्स आ रहे होते हैं बट उनसे डील नहीं क्लोज हुई होती, बिकॉज देयर ऑडियंस इज इररिलेवेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पोस्ट पे मेरे 10 to 20 लाइक्स होंगे, 4 से 5 कमेंट्स आ रहे होंगे, लेकिन उनको डील्स मिल रही होती हैं। उसकी रीजन ये है कि उनका नेटवर्क टू द पॉइंट है एंड उनका नेटवर्क यूनिफॉर्म है एंड इट्स इन अकॉर्डेंस टू देयर प्रोफाइल। तो ये कुछ पर्सनल ब्रांडिंग क्या के कॉन्सेप्ट्स थे विद रिगार्ड्स टू लिंक्डइन दैट यू शुड इम्प्लीमेंट। उसके बाद आपके पास ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर प्रोफाइल लुक मोर प्रोफेशनल। इसके अंदर सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है। अब इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं। मैंने ये वाला पर्टिकुलरली यूज किया हुआ, थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा बाकियों से। बाज लोग इस तरह से कर रहे होते हैं। अब ये कुछ की प्रोफाइल मैंने ऑप्टिमाइज की है, कुछ मेरे टीम मेंबर्स ने मैंने लगाई हुई है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। अब ये आप कर किस तरह से सकते हैं, इसके लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक कैनवा है। कैनवा में बहुत ज़्यादा यूज कर रहा होता हूँ। कैनवा आपको इस सारे प्रोसेस के अंदर बहुत हेल्प आउट करेगा। तो मेरे पास तो खैर मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बना चुका हूँ इसके ऊपर, तो मैं तो कैनवा यूज़ करता हूँ। इसके अलावा अगर आप फोटो एडिटर कोई भी फोन के ऊपर मोबाइल ऐप स्टोर के अंदर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। फोटो रूम मैंने यूज़ किया हुआ है, सो आई कैन रिकमेंड। ये मैंने फोटो रूम पे बनाया, सो दैट इज वन। इसी तरह से आप आ जाएं बैनर के ऊपर। अब बैनर का ये जो है ना, लाइक एक विजुअल मैंने
ढूंढा था कहीं से। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपके बैनर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए। अब इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, बट इट्स गुड टू हैव दीज एलिमेंट्स इन योर बैनर। एक तो आपकी हेडलाइन होनी चाहिए। हेडलाइन इज बेसिकली कि आप कर क्या रहे हैं, आप करते क्या हैं, व्हाट आर सम ऑफ द टर्म्स दैट डिफाइंस योर सर्विस और योर स्किल। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर अपना एक एक्सपीरियंस लगाया हुआ है। लाइक मैंने एक क्लाइंट के लिए कॉल्स बुक की थी, 17 कॉल्स इन 2 वीक्स, तो मैंने वो चीज़ लगाई हुई है। तो एक तो ये करियर है कि इट्स स्पीकिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड इट्स ऑल्सो टेलिंग पीपल के व्हाट आई डू। तो यू हैव टू फिगर आउट कि आपने अपने हेडलाइन के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ लगानी है। स्टार्टिंग ऑफ अगर आपके पास केस स्टडीज नहीं है तो यू कैन स्पीक मोर टू द बेनिफिट्स, लाइक आप जो काम कर रहे हैं उससे लोगों को क्या फायदा होगा, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब इसकी लोग कोशिश होती है वो टेक्निकलिटीज पे बात करें, उनको लगता है कि टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसका फायदा नहीं होता, उसका फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी अगर लोगों को समझ ही नहीं आ रही तो फिर वो आपसे क्या परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई वुड से कि गो स्पीक मोर टू द बेनिफिट पार्ट और टू द ऑफर पार्ट कि आप लाइक प्रोवाइड क्या कर रहे हैं अगले को। इसी तरह से कॉल टू एक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये दो एलिमेंट्स मेनली इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन इज लाइक लोग आपको किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं, वेदर दैट इज कि वो आपके कैलेंडर पे कॉल बुक कर लें, वेदर दैट इज कि वो आपको डीएम कर लें, वेदर दैट इज कि कोई भी और मीडियम है जिससे आपके फीचर सेक्शन में कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आप चाह रहे हो कि वो लोग जाकर देखें, तो आप लिखोगे चेक फीचर सेक्शन, दैट इज अ कॉल टू एक्शन। अब मैं अगर आपको इसमें से एग्जांपल दूं तो ये दिस इज अ कॉल टू एक्शन, बुक अप की कंसल्टेशन कॉल। ये मेरी हेडलाइन है, ये मेरा कॉल टू एक्शन है, दिस इज माय सब हेडलाइन। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से एक फॉर्मेट बन रहा होता है। तो ये सर्विसेज लोग वैसे ऑफर कर रहे होते हैं, हम लोग खुद भी ओवरहेड ऑप्टिमाइज भी ये वाला सारा प्रोसेस करके देती है। दैट इज व्हाई आई कैन स्पीक टू इट विद सो मच कन्विक्शन। सो ये एक चीज थी। और बैनर्स आप जो है ना कैनवा पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो बैनर उस पर भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ चूंकि दिस इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, तो मेरा भी कुछ 4-6 महीने पहले अगर मैं अपनी प्रोफाइल देखता था तो हॉरेबल। ठीक है, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों का, मुझे पता नहीं था कैसे होती हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ अगर आप खुद ट्राई कर रहे हो, लेट्स से किसी से प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले रहे, तो इट माइट नॉट बी द बेस्ट बैनर। लेकिन जो आपका लिंक्डइन पर जो प्रोसेस है ना सारा, वो आइटरेटिवली इंप्रूव करेगा। आपको वक्त के साथ साथ चीजें समझ आती जाएंगी, आप उनको इंप्रूव करते जाओगे। अभी भी मेरी प्रोफाइल अपनी के अंदर बहुत सारी चीजें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ और करूंगा भी। तो ये है कि दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू लुक लाइक। स्टार्ट में यू आर जस्ट गोइंग टू हैव a certain level of professionalism, फिर you are going to improve it further and so on and so forth। फिर आपका आ जाता है बायो सेक्शन। सो बायो सेक्शन अगेन आपका जो हेडलाइन है ना यहाँ पर, इट कुड बी समथिंग लाइक दैट एज वेल और इट कुड बी योर ऑफर। मैंने 3 एग्जांपल्स बना के रखी हुई है। बायो सेक्शन में से जनरली शॉर्ट होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट आपने नहीं डालना और इसको लिमिटेड रखना है। और इसके अंदर लाइक कुछ लोगों ने ना वो बॉक्सेस बना कर ना 50 चीजें लिखी होती हैं, वो काम आपने नहीं करना। वो जनरली स्टूडेंट्स इस तरह कर रहे होते हैं, BSc फिर उसके बाद हम लिख देंगे कि ये हमारे पास स्किल्स हैं, वो उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक भी नहीं होगा। तो you need to keep it uniform and you need to keep it to the point। हर लाइक आपने 10-15-20 चीजें नहीं लिखी उसके अंदर, और उन चीजों का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप अपना लाइक लाइफ स्टोरी लिखने बैठ जाओ उधर। तो इट नीड्स टू बी शॉर्ट, इट नीड्स टू बी इंपैक्टफुल एंड इट नीड्स टू स्पीक टू योर ऑफर, टू योर सर्विस, टू योर इंडस्ट्री। ठीक है, अब इधर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, थी तो 3 एग्जांपल्स। अगर आप उसको ऑफर ओरिएंटेड बना रहे हो तो इट नीड्स टू बी डाटा ड्रिवन। लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 30 to 50% ग्रोथ ऑफर करूंगा विद दिस सर्विस, दैट इज ऑफर ओरिएंटेड। लाइक दिस इज अ प्रॉमिस दैट आई एम डिलीवरिंग। इसी तरह से एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है तो फिर आई एम गोइंग टू टेल देम कि मैंने इस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया हुआ। इसी तरह स्किल ओरिएंटेड करना है तो हियर यू कैन स्पीक टू द स्किल पार्ट, बट ऐसे नहीं कि आपने डिफरेंट स्किल्स को यहाँ पर इनलिस्ट कर देना। उन स्किल्स का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक होना चाहिए एंड इट नीड्स टू बी एसोसिएटेड विद वन पर्टिकुलर पेरेंट इंडस्ट्री, लाइक यू कुड से। इस तरह से यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, स्किल्ड इन एसईओ, पेड एड्स एंड लीड जनरेशन। अब इवन दो दीज 3 थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट, लेकिन एंड रिजल्ट तीनों का एक ही है। तीनों का काम यही है कि एंगेजमेंट्स लेकर आना, लोगों को लेकर आना, डील्स डन करवाना। तो दैट इज अ यूनिफॉर्मिटी बिटवीन। तो ये आपका बायो सेक्शन हो जाएगा इस तरह से। ये अब आप इसको बेहतर तरीके से एनालाइज तब करेंगे जब आप लोगों के बायो सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। तो यू गोइंग टू सी सम रियली पुअर बायो सेक्शंस, यू गोइंग टू सी सम इंपैक्टफुल बायो सेक्शंस। प्रोफाइल को देख के जो है आपको आइडिया हो जाता है। फिर आपका अबाउट सेक्शन आ जाता है। अबाउट सेक्शन आपका आएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर जिस बंदे को कॉपी राइटिंग का थोड़ा आइडिया होता है ना, वो फ्लरिश कर जाता है। अब सजेशंस ये हैं मेरी कि आप जो है ना एक पैटर्न को फॉलो कर लें जो कि मैंने उधर लिखा हुआ भी है। देयर इज अ हुक। हुक किस चीज़ को बोलते हैं कि पहली लाइन, बहुत लोग चूंकि अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया, पहली लाइन पढ़ते हैं लोग छोड़ देते हैं। तो हुक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको देखकर लोग कंपेल हो जाएं कि वो बाकी सारी चीज़ को भी पढ़े। तो हुक नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग।
तो ये हुक की एक डेफिनेशन है। तो अब वो आपने खुद फिगर आउट करना है कि हुक किस तरह से बनाना है आपने। तो इसकी एग्जांपल्स आपको लोगों के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगी। इसी तरह से पेन पॉइंट्स आने चाहिए। आपकी आईसीबी होती है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। दीज आर द पीपल दैट यू वांट कि आपकी क्लाइंटेज में के लोग आए, ठीक है। दीज आर योर क्लाइंट्स एसेंशियली। उनके स्ट्रगल्स क्या है? लेट्स से वीडियो एडिटर्स की बात करूं तो लाइक उनको अच्छी एडिटिंग नहीं मिल रही, दैट इज अ स्ट्रगल। या फिर उनको जो है वो अच्छे बजट में वो सर्विस नहीं मिल रही, तो सम स्ट्रगल्स लाइक दैट। इसी तरह से अगर मैं अपने क्लाइंट्स की बात करूँ तो उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि उनको लीड्स नहीं मिल रही होती, ठीक है, या लीड्स मिल भी रही होती है तो इरेलीवेंट होती हैं। तो दोज आर सम ऑफ द पेन पॉइंट्स दैट आई कैन डिस्कस। उसके बाद आई कैन टेक दोज पेन पॉइंट्स एंड देन आई कैन ट्रांजिशन टुवर्ड्स माय सॉल्यूशन कि अच्छा आपके ये मसले, दीज आर द सॉल्यूशंस दैट आई कैन ऑफर। एंड उसके साथ मैं अटैच करूंगा थोड़ा बहुत अपना केस स्टडीज। लाइक मैं ये बताऊंगा कि इस तरह का एक क्लाइंट था जिसके वही मसले थे जो आपके, एंड देन दिस इज हाउ वी हेल्प देम गेट ओवर दोस। अगर वो चीज आपके पास नहीं भी है तो इट्स ऑल गुड, यू कैन जस्ट मेंशन द सर्विसेज एंड योर ऑफर देयर। ऑफर में जारी बात आप गारंटी दे रहे हो अगले को। अगर आप उसको कह रहे हो कि ये चीज होगी, और अगर नहीं होगी तो इट्स ईदर मनी बैक और आई एम गोइंग टू वर्क विद यू अंटिल वी गेट टू दैट पॉइंट। तो ये है कि यू कैन कवर अप फॉर द केस स्टडी पार्ट यूजिंग एन ऑफर। फिर लास्ट में आपके पास आ जाती है कॉल टू एक्शन। वही बात दोबारा से कि हाउ दे कैन रीच आउट टू यू। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे इस पे देख लें तो ये तो खैर थोड़ा सा मैंने इसको इधर उधर किया हुआ, जंबल अप किया हुआ है। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो चैलेंज पार्ट है दिस इज द पेन पॉइंट, द सॉल्यूशन इज ये जो सर्विसेज मैंने ऑफर की हुई है ये। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना लेट्स से एक और हुक डाला हुआ है, एंड देन लास्ट पर हमारे पास आ जाएगा कॉल टू एक्शन, विच इज कि आप मुझे ये वर्ड डीएम करें तो आई एम गोइंग टू सेंड यू अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मेरी सारी डिटेल्स पड़ी हुई होंगी प्रोजेक्ट की। तो दिस इज लाइक इनवाइटिंग पीपल टू योर फनल, जो मैंने अभी पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। तो दिस इज अ बिट अबाउट द अबाउट सेक्शन। तो अगर तो आपको बहुत लाइक ये अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है तो जस्ट सिंपली जो है ना इसमें से 2 से 3 पार्ट्स लेकर एक अबाउट सेक्शन आप बना लें। इसके अलावा मैंने एक डॉक्यूमेंट और भी शेयर किया है, वो आपको इसके बाद मिल जाएगा। उसके अंदर भी अबाउट सेक्शन का एक पैटर्न पड़ा हुआ है दैट यू कैन फॉलो। उसके अंदर पर्सनल स्टोरी का है एलिमेंट। लाइक यू कैन, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ योर ओन क्लाइंट्स, यू कैन स्पीक टू योर ओन स्ट्रगल्स कि मैं इस तरह स्टार्ट कर रहा था, मुझे ये स्ट्रगल्स आ रहे थे, देन आई लुक इनटू दिस सर्विस एंड उसने मुझे इस तरह से हेल्प आउट किया, एंड आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल। तो दैट इज सिंपल वे ऑफ एड्रेसिंग दिस एंटायर सेक्शन। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका सर्विसेज सेक्शन। ये अब आपको स्टार्ट में तो एक्सेसिबल नहीं होगा, ये आपको यहाँ से जाके मिलेगा। ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो यू आर गोइंग टू सी ऐड सर्विसेज, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो यू आर गोइंग टू सी दिस सर्विसेज सेक्शन। दिस इज अ बिट लाइक फाइवर या अपवर की जो गिग होती है। अब इसमें व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि अगर तो किसी ने गिग बनाई हुई है तो उसको आइडिया होगा कि एक तो एसईओ कीवर्ड्स का ख्याल रखना होता है। लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि जो वर्ड्स आपने यहाँ पर लिखे हैं दे आर वर्ड्स दैट आर बीइंग सर्च्ड, ठीक है। एक तो वो चीज़ है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर वो वर्ड्स जो है ना उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। एक तो ये चीज़ है कि उसको एसईओ फ्रेंडली बनाएं। उसके बाद यू नीड टू स्पीक मोर टू द एंड रिजल्ट्स। लाइक आप उनको क्या करके दे रहे हो, कॉल्स बुक करके दे रहे हो, सेल्स निकाल के दे रहे हो, उनका रेवेन्यू बूस्ट कर रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर रिसीविंग एज अ रिजल्ट ऑफ योर सर्विस। तो वो 2 चीजें जो है ना कंटेंट पार्ट में होनी चाहिए। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द मीडिया, वहां पर आपने अगर आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उन चीज़ों की जो आपने क्लाइंट के लिए की हुई है, जिस तरह से अब ये दीज मैट्रिक्स स्पीक टू द रिजल्ट्स दैट आई प्रोड्यूस। यहाँ पर लिखा हुआ मैंने 28 कॉल्स बुक करके दी हुई है, अगर आप इसको खोलें। इस तरह से ये मैंने एक चैट की कन्वर्सेशन लगाई हुई अपने एक क्लाइंट के साथ जिसको मैंने कॉल्स बुक करके दी थी, एंड ही इज हैप्पी अबाउट दैट। इसी तरह से इफ आई स्क्रॉल डाउन तो वहाँ पर मुझे और भी चीज़ें इस तरह की मिल जाएंगी। तो नंबर्स जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को। अगर तो ऑब्वियसली आप क्लाइंट को समझ आ रही है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो यू हैव टू मेक इट understandable for the person who's looking at these numbers, and then you have to represent those as like अब अपने आप को एज अथॉरिटी प्रेजेंट कर सको। तो दैट इज अ बिट अबाउट योर सर्विस सेक्शन। उसके बाद ये है कि जब आपकी कोई सर्विस अवेल करता है तो आपको रिव्यूज मिलते हैं। जिस तरह से मुझे अब 2 रिव्यूज लगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी आपकी सर्विस को अवेल करेगा यू कैन रिक्वेस्ट देम टू राइट अ रिव्यू फॉर यू, एंड यहाँ से आपकी प्रोफाइल थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सर्विस सेक्शन। फिर एक्सपीरियंसेस सेक्शन, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपनी प्रोफाइल को जॉब सर्च के लिए यूज कर रहे हैं। उनके लिए एक्सपीरियंसेस और यू कुड से सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंसेस एंड एजुकेशन ये मैटर करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि बजाय इसके कि बस आप एक कंपनी का नाम लिखकर अपनी डेजिग्नेशन लिख दें उसके अंदर, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत कंटेंट उसमें डाल दिया करें। अगर आपने एक रोल में आप रहे हैं
थ्रू अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो आपने वहां पर क्या किया, डू मेंशन दैट एटलीस्ट 1 to 2 पैराग्राफ में, या बुलेट पॉइंट्स बना ले 4 से 5, ताकि अगले को पता चले कि यार इट्स नॉट जस्ट अ डेजिग्नेशन, दैट पर्सन डिड समथिंग देयर एंड इसकी ये रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज थी। एंड इफ यू हैव एनीथिंग अवेलेबल दैट इज विजुअल, लेट्स से लेटर ऑफ एक्सपीरियंस, लेटर ऑफ एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन, तो वो आप लेटर्स वहां पर अटैच कर दें। या फिर लेट्स से अगर आपने प्रोजेक्ट किया है, तो अब मैंने तो कुछ प्रोजेक्ट्स भी अपने डाले हैं। अब ये मेरी डेजिग्नेशन इस एजेंसी के साथ ऐसी है कि इट्स नॉट लाइक अ जॉब, इट्स मोर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चीज है। तो उस वजह से मैंने जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो है ना सिर्फ चैट्स लगाई हुई हैं उन क्लाइंट्स के साथ जिनके लिए मैंने काम किया था थ्रू क्रिएटर फ्लाई। तो यहाँ से कुछ मीडिया, यहाँ पर यू कैन सी के I have booked some calls and then I attached some conversations here. I won't suggest कि आप लोग यही करें. It's just an example. ये this one. So that's 2 appointments booked. So this is speaking to the appointments that or the calls that I booked. This is associated entirely to what I do. तो वो इस तरह की कोई भी चीज आपको अपने let's say किसी की वेबसाइट आपने रैंक की है थ्रू एसईओ, या किसी को बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग का काम करके दिया एंड दे हैव हैड सम रिव्यूज फॉर यू, तो वो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो that is something that you can do in the visual aspect. फिर लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस आ जाते हैं। सर्टिफिकेशंस आप सोर्सेज आपने खुद देखने हैं कि आपको कहाँ से मिले हैं। लिस्ट से अभी आप सेमिनार ले रहे हैं तो एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिलेगा, तो आई वुड सजेस्ट वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यू कैन आल्सो राइट अ बिट टू द पार्ट कि मैंने ये सेमिनार लिया एंड दिस इज द स्टफ दैट आई लर्नड देयर, तो वो आप इधर अटैच कर सकते हैं। फिर आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट्स से यूडमी पर भी फ्री सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो वो आप थोड़ा बहुत सर्च आउट करके सर्टिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो वो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी ऐड करते हैं। इसी तरह से एजुकेशन के अंदर भी जो मैंने आपको इधर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, यू शुड गो विद द सेम अप्रोच। थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करें, एनी मटेरियल दैट यू कैन ऐड विद रिगार्ड्स टू, मतलब थोड़ी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए जो भी चीज़ आपको जॉब एक्वायर करने में या फिर कोई अपॉर्चुनिटी एक्वायर करने में हेल्प कर सके, यू शुड डेफिनेटली ऐड दैट टू योर प्रोफाइल। सो ये जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव सा हो गया फॉर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना चाहिए। एंड देन नेटवर्क बिल्डिंग वाली चीज़ पे तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आपने किस किस्म के लोग साथ के कंटेंट के साथ आपने इंटरेक्ट करना है एंड देन किन लोगों के साथ आपने अटैच होना है, उसको सेगमेंट किस तरह से करना है। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन विद दिस पार्ट। तो ये कुछ प्रोफाइल्स हैं, मैंने अपनी प्रोफाइल लगाई है। एक्चुअली वो जारी बात है कि थोड़ा सा होता है कि किसी और प्रोफाइल लगानी चाहिए, तो मैंने अपनी ही और अपनी टीम मेंबर की इधर लगाई है। तो यू कैन सी अ बिट कि इधर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा बायो सेक्शन भी है। यू आल्सो हैव अ बैनर, यू आल्सो हैव यूनिफॉर्मिटी इन कलर्स, यू हैव अ हेडलाइन, यू हैव एन ऑफर, वो सारा कुछ जो है ना क्लियर है। So दूसरी चीज आ जाती है, now that you have an optimized profile, now that you have a skill in mind, an offer, a funnel, आपको सारी चीज़ों की एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। So उसके लिए आपको मैंने जो 2 फनल्स एक्सप्लेन किए थे ना, आई एम गोइंग टू स्पीक अ बिट टू दीज टू। एक तो आपने आउटरीच कैसे करनी है एंड देन दूसरा आपने पोस्टिंग किस तरह से बनानी है। तो पोस्टिंग का तो मेनली यही होता है कि जिस बंदे को अपनी स्किल का पता होता है तो उसको पता होता है कि मेरी अपनी इंडस्ट्री के अंदर हॉट टॉपिक्स कौन से हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई शुड बी टॉकिंग अबाउट। अब अगर एसईओ की बात की जाए तो लाइक आप किस तरह से लोगों के कंटेंट को रैंक कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं, यू कैन स्पीक टू दोज पार्ट्स। इसी तरह से अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया एंड यू हैव प्रोड्यूस्ड सम रिजल्ट्स फॉर देम एंड यू हैव हेल्प्ड देम रैंक देयर प्रोफाइल्स, तो आपने किस तरह से किया एंड देन व्हाट आर द रिमार्क्स ऑफ द क्लाइंट्स एंड हाउ हैव यू हेल्प देम, उसके प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। इसी तरह से यू कैन डॉक्यूमेंट योर जर्नी। जिस तरह से अब मैंने आपको अपना स्टार्ट बताया कि लाइक 6 to 8 months ago आई स्टार्टेड ऑफ बाय डूइंग दिस एंड देन इस तरह से मैंने इंप्रूव किया एंड दिस इज द एंड पॉइंट दैट आई रीच्ड। तो उस तरह की एक जर्नी ओरिएंटेड पोस्ट आप कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सम कंटेंट। तो उसको व्हाट आई जनरली डू इज आई क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर। लाइक उसमें मैं ये कर लेता हूँ कि मैं एक वीक लेट से मैं हफ्ते में 4 पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एक दिन जर्नी ओरिएंटेड पोस्ट कर रहा हूँ तो उसका कंटेंट मैं लिखूंगा। एक दिन मैं कर रहा हूँ केस स्टडी ओरिएंटेड, किसी क्लाइंट के लिए मैंने काम किया हुआ है, अभी फ्रेश काम किया हुआ है लेट्स से, और मुझे रिजल्ट्स मिले हुए हैं एंड देन आई हैव सम विजिबल मटेरियल दैट आई कैन शो टू माय ऑडियंस। तो केस स्टडी ओरिएंटेड पोस्ट मैं ट्यूसडे को कर लूंगा, लेट्स से वेडनेसडे को मैंने कोई पोस्ट नहीं की, थर्सडे को मैं जो है एजुकेशनल पोस्ट कर दूंगा। आई विल स्पीक अ बिट टू मैं लीड जनरेशन करता कैसी हूँ, स्क्रिप्ट्स और सीक्वेंसेस कैसे जनरेट करता हूँ, आई विल स्पीक अ बिट टू दैट पार्ट। तो ये कि आप इसको
टॉपिक वाइज अपने वीक में डिवाइड कर सकते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड, लाइक इससे आपको ना हेल्प मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू सिट अराउंड एवरी वीक टू थिंक कि मैंने आज किस चीज़ के बारे में पोस्ट लगानी है। एक कैलेंडर से ये होता है कि आपके पास सारा प्रोसेस सिस्टमाइज हो जाता है, एक फ्रेमवर्क की सूरत में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस चीज पर आप वर्किंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ तो ये चीज आपको शायद इतना अच्छी तरीके से समझ ना आए, लेकिन जब आप थोड़ा बहुत कंटेंट डालना शुरू करेंगे एंड अपने कंपेटिटर्स का कंटेंट थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि उनकी भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है हफ्ते में, एक पर्टिकुलर डेज जिनमें वो पोस्टिंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे पोस्टिंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर वेज में पोस्टिंग कर रहे हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड देन यू ऑल्सो हैव टू लुक इनटू क्रिएटिंग योर ओन पैटर्न्स। अब मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि एक ही पैटर्न बनाकर उसके अंदर आपने आपको फिक्स्ड कर लो। पैटर्न सिर्फ वही आपने आगे लेकर चलना है जिससे आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स मिल रहे हो या मिल चुके हो, ठीक है। तो वो दैट इज समथिंग व्हिच इज टेस्टेड, दैट इज समथिंग दैट हैज प्रोड्यूस्ड सम रिजल्ट्स, एंड वो चीज़ आपको कब मिलेगी, जब आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करेंगे। तो सबसे बड़ी एडवाइस मेरी यही है इस सारे लिंक्डइन जर्नी को देखते हुए कि ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड बी क्रिएटिव अबाउट देम एंड देन गो फॉरवर्ड विद इट। लाइक उसमें आपको एनालिसिस पैरालिसिस में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ को आपने 100 दफ़ा नहीं सोचना। जस्ट गो फॉर इट। एक पोस्ट लगाने में आपको कुछ कोई पैसे नहीं जा रहे आपके, इसी तरह से एक बंदे को रीच आउट करने में कुछ भी नहीं जा रहा। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, पोस्ट नहीं वर्क करेगी, लाइक नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह से वर्स्ट केस सिनेरियो आउटरीच का ये है कि बंदा आपको किसी रिप्लाई नहीं देगा, तो उसमें ये कि लाइक आपको कोई हर्ज नहीं हो रहा, ठीक है, यू शुड गो फॉर इट। और इन द बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो रहा है, आपको डील मिल रही है। तो ये है कि इन द लूजिंग केस यू आर एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड इन द विनिंग केस आपको डील मिल रही है, दैट्स अ विन विन सिचुएशन इन अ वे। तो कंटेंट में तो मेनली यही था कि आपको केस लाइक एक आप फॉर्मेट बना लें कि दिन में हफ्ते में अगर 4 पोस्ट करनी है तो उसमें हर पोस्ट किस टॉपिक पे होगी, एंड देन विद इन दैट टॉपिक और कितने टॉपिक्स निकल सकते हैं। लेट्स से एजुकेशनल के अंदर बेतहाशा टॉपिक निकाल सकता हूँ मैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड में। इसी तरह से केस स्टडीज हैं, अगर लेट्स से मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है तो मैं बहुत पुरानी 10 साल पुरानी केस स्टडी भी निकाल के मैं उसको रेलेवेंट बना सकता हूँ इफ आई नो द वे ऑफ हाउ टू डू इट। तो वो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने खुद फिगर आउट करनी है। इसी तरह से स्टोरी ओरिएंटेड है, हर बंदे की अपनी कोई ना कोई स्टोरी होती है, वेदर दैट इज around some educational background, whether that is around some experiences. So you should definitely write a bit to that part. Like आपने education pursue की, कौन सी की, कैसे की, you can write to that part and somehow relate it to your skill. ठीक है, वो चीज़ important है, but it's not necessarily important कि आपकी हर post strictly it's around the content that you're trying to push. थोड़ा बहुत आप उसके अंदर human element डाल सकते हैं. It's okay to write content that is a bit irrelevant to your core content, ताकि एटलीस्ट लोगों को ये भी पता चले कि हु इज द पर्सन बिहाइंड द ब्रांड, थोड़ा बहुत आपके बारे में भी वो जाने अदर देन जस्ट द स्किल। इसके बाद आ जाते हैं 3 टाइप्स के कंटेंट्स मेनली। इट्स टेक्स्ट बेस्ड। एक तो कंटेंट ऐसा होता है जिसमें आपको विजुअल्स नहीं होते, कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट बना रहे होते हैं, तो आई वांट रेकमेंड दैट। उसकी रीजन ये है कि टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट के ऊपर एंगेजमेंट्स उस तरह से नहीं आती। लाइक विजुअल एलिमेंट होता है ना, अगला बंदा वैसे ही देख के उसको थोड़ा बहुत लाइक ही स्टॉप्स बाय एंड ही हैज अ लुक एट इट। लेकिन सिर्फ कंटेंट लिखा हो ना तो इट फील्स अ बिट ड्राई, कितना भी अच्छा हो। अगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडलाइन लिखी हुई है, ठीक है, लाइक इट्स प्रॉमिसिंग यू $1000 कि आप उसको रीड कर लो तो आपको मिल जाएंगे, फिर आप कुछ रुक के पढ़ लोगे उसको, वरना फिर इट्स लाइक जिस जिस हिसाब से अभी कंटेंट डेवलप हो रहा है, लाइक अब सारा कल्चर शॉर्ट्स पे मूव कर गया, वीडियो शॉर्ट्स पे, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम रील्स हैं, फेसबुक हैं, वहां पर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन टू रीड योर पैराग्राफ्स, पहली चीज। तो इसमें पोस्टिंग के पर्सपेक्टिव में आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक तो उसको स्पेसिंग देकर जो है ना लिखें, ताकि लोग एटलीस्ट उसको क्योंकि आजकल लोग रीड नहीं करते, आजकल लोग स्किम थ्रू कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू मेक दैट स्किमिंग प्रोसेस इजियर फॉर देम। उसके लिए ये कि you have to bold certain keywords जो आप चाहते हो कि वो लोग पढ़ें, and then you have to break it down into multiple paragraphs। एक तो मैं ये सजेशन दूंगा। सेकेंडली उसको थोड़ा लिमिटेड रखें एंड देन रिलाई मोर ऑन द विजुअल एलिमेंट्स। अब विजुअल एलिमेंट में कुछ लोगों को ये होता है, कहते हैं कि हमें ग्राफिक डिजाइन नहीं आती, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमने क्या विजुअल डिजाइन करना है। उनके लिए बस एक सजेशन ये है मेरे पास, क्योंकि मैं खुद भी कोई उस तरह से लाइक एडिटिंग लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, बट आई वोंट कॉल माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर जो कि करता ही यही है। तो व्हाट आई डू इज कि मैं 1 या 2 या 3 टेम्पलेट्स में रखे होते हैं कैनवा के ऊपर अपने पर्टिकुलर डिजाइन करके अपनी कलर स्कीम्स के अंदर, एंड मैं उन्हीं के अंदर जो है ना अपना कंटेंट बार बार चेंज करके लगा रहा होता हूँ, एंड वो एक तरह से आपके ब्रांड की आइडेंटिटी बन जाते हैं रादर देन बैकफायरिंग। दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। इसी तरह से आप जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं और मल्टीपल एआई ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है जिनसे आप विजुअल्स जनरेट करवा के उनके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज अ बिट अबाउट द विजुअल पार्ट। इसी तरह से यू आल्सो हैव
the option to use carousels. लेकिन उसमें ये है कि थोड़ी एफर्ट है carousels बनाने में. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा विजुअल पार्ट्स पर फोकस करें. दैट इज टेक्स्ट प्लस विजुअल. लाइक carousels इज एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टेक्स्ट इज वेरी ड्राई. अच्छा, दैट वाज इट फॉर द कंटेंट पार्ट. अब कंटेंट, अच्छा ये करने से होगा क्या? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पुटिंग द कंटेंट आउट देयर? अब वो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर लोग ऑलरेडी ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आपके इस सारे लाइक कंटेंट की जरूरत पड़ सकती है, जिस सर्विस जो सर्विस आप पोस्ट कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो वो उनको पता कैसे चलेगा? वो आपके कंटेंट के थ्रू ही पता चलेगा. इफ देयर इज रेगुलरिटी, इफ देयर इज कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हैं, तो द मोर people will get to know about you and the skill and the service that you are offering. That is why consistency के बारे में कहा जाता है कि वो बात है कि content is economy, content is currency basically. तो उसकी रीजन यही है कि अगर आप कंसिस्टेंटली जो है ना अपना कंटेंट पुश कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मोर पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू, मोर पीपल विल गेट टू सी यू. इवन इफ कि अगर आपको बहुत ज्यादा एंगेजमेंट नहीं मिल रही, तो देयर इज स्टिल चांसेस कि आपको कुछ ना कुछ like you can get something out of that content through some way. अब वो जरूरी नहीं है कि आप कंटेंट को एक ही डायमेंशन में यूज करें. लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप बस एक पोस्ट बनाकर लिंक पे डाल दें. आई वुड से कि उसी कंटेंट को मोल्ड करके some way फेसबुक पर डालें, in some way you go for let's say इंस्टाग्राम, लेट्स से ट्विटर. इंस्टाग्राम पे तो खैर नहीं इस तरह कंटेंट मेनली चलता, बट ये कि मल्टीपल जगहों पर पर्सनल ब्रांडिंग करें आप एंड देन यूज द सेम कंटेंट मल्टीपल चैनल्स एंड सी के वो चीज कहाँ पर किस तरह से वर्कआउट कर रही है. अब मैं आपको लिंक्डइन के हिसाब से चीजें बता रहा हूँ कि दिस इज द स्टफ दैट कैन वर्क आउट. अब जो लाइक रेगुलरिटीज हैं और द वे इन विच थिंग्स आर बीइंग डन ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स वो डिफरेंट हो सकता है, बट कंटेंट सेम ही रहता है. लाइक आपने उसका फॉर्मेट चेंज करना है, आपने उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बट द एक्चुअल कंटेंट इज द आइडिया बिहाइंड इट वो सेम ही रहेगा अमंग other multiple channels, whether that is Facebook, whether that is Twitter, whether that is LinkedIn. क्योंकि इन तीन प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर सकूँ तो आई कैन स्पीक टू इट कि इन तीन प्लेटफॉर्म्स पर पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट वर्कआउट करता है. लास्ट में हमारे पास आ जाता है आउटरीच एंड अच्छा, इससे पहले हम इस पे जाएं, आपको कुछ पोस्ट दिखा भी देता हूँ अपनी ही. कुछ पोस्ट दिखा दो. मैंने तो खैर स्केड्यूल किया होता है टू सेव टाइम. अब ये ऑप्शन लिंक्डइन आपको देता है कि यू कैन एक दिन आप बैठ सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट आइडियाज जमा करें, उनके अराउंड पोस्ट लिखें एंड देन यू स्केड्यूल देम फॉर लेट्स से द नेक्स्ट 2 वीक्स. तो आपका हेडेक चला गया पोस्ट डालने का. उसके बाद जो काम आ जाता है वो आपका नेटवर्क बिल्डिंग का है एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू गेट पीपल टू एंगेज विद योर कंटेंट. दैट इज द की पार्ट. वो अब आपने किस तरह से करना है, उसके लिए मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं, whether that is reaching out to people and then interacting with them by building organic connections, या फिर ग्रुप्स में जाकर आप पोस्टिंग करें, या फिर आप लोगों को साथ जो है ना ग्रुप्स बनाने, जिस तरह से भी वो फिजिबिलिटी आपको समझ आती है. तो ये कुछ पोस्ट्स हैं, आई कैन शो यू. अब ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केस स्टडी पोस्ट जिसके अंदर मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ अपनी कन्वर्सेशंस अटैच की हुई हैं एंड यू कैन सी कि मैंने इसके अंदर पैराग्राफिंग की हुई है, पॉइंट्स बनाए हुए हैं सो दैट पीपल कैन रीड द स्टफ दैट इज लाइक जो कि स्किमेबल है. जरा कुछ कीवर्ड्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस उस पर बात हो रही है, डाटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन पे बात हो रही है. अब आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि लोग जो है ना पूरी पोस्ट पढ़ेंगे मेरी. मुझे बस यही पता है कि उसके अंदर सेलेक्टिव पार्ट्स पढ़ रहे होंगे वो एंड देन दे आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस व्हिच इज द की पार्ट. लाइक उनको पता है कि मैंने लोगों की जो कंटेंट स्ट्रेटजी है या आउटरीच स्ट्रेटजी है उसको कैसे इंप्रूव किया. तो दिस इज गोइंग टू हुक देम. लाइक ये देखेंगे लोग तो उनको थोड़ा सा लाइक एक स्पार्क मिलेगा, उनको मिलेगा कि यार इसने किस तरह से ये चीज की एंड हाउ वी कैन रेप्लिकेट दैट. तो दिस इज वेयर हुक्स हेल्प आउट के लाइक पीपल स्टॉप बाय एंड पीपल गिव इट अ रीड. अब हो सकता है वो सारी पोस्ट ना पढ़े बट कुछ ना कुछ पढ़ के चले जाएंगे एंड देन दे माइट मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात बैठ जाए कि यार ये बंदा जो है ना ये लीड जनरेशन करता है एंड इफ वी लेट्स से हैव अ नीड फॉर इट तो ये कि दे कैन रीच आउट टू मी फॉर दैट. So this is a bit about content strategy. इधर भी कुछ अब मेरी केस स्टडी पोस्ट्स हैं, some of them are around educational. अब ये मेरा जो फॉर्मेट है this is for educational because इसके अंदर मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाई हुई, कोई नंबर्स नहीं लगाए हुए, just speaking to a particular topic and then the post is educating them on the topic. तो this is a bit about the content strategy. इस तरह से आप मल्टीपल लोगों को कुछ लोगों की प्रोफाइल्स खोल कर उनको रिवर्स इंजीनियर करके देख सकते हैं. लाइक थिंक अबाउट इट as if you were in the shoes of a person जिसकी प्रोफाइल है वो कि उसने क्या सोच कर ये प्रोफाइल लगाई है. तो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट स्ट्रेटजी. फिर आपके पास आ जाती है आउटरीच एंड क्लोजिंग प्रोजेक्ट्स. लाइक अब आपने लोगों को रीच आउट करना है, उनको मैसेज करना है, उनको ढूंढना है, वो वाला पार्ट किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है. लाइक
अंडरस्टैंडिंग आपकी आईसीपी कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात पहले कर चुका हूँ कि आपकी जो स्किल है उसको यूटिलाइज करने वाले सबसे लाइक कौन से सेगमेंट्स हैं जिनको जरूरत पड़ सकती है आपकी स्किल की। अब वीडियो एडिटिंग की जिस तरह मैंने बात की थी, स्टूडियोज में रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसी तरह से यूट्यूब चैनल्स में जो चैनल चला रहे हैं उनको रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसी तरह से मेरी तरह का कोई बंदा है जो पर्सनल ब्रांड बना रहा है अपना, उसने एड्स रन करने हैं, तो मुझे एड्स रन करने के लिए सिर्फ एक वीडियो तो नहीं चाहिए, मुझे तो उसके लिए एडिटर भी चाहिए जो मेरी लाइक उसके ऊपर एनिमेशंस को सारा मैनेज कर रहा हो। तो अब ये 3 से 4 यूज केसेस आ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी ने अपना VSL बनाना है और वो अपनी लैंडिंग पेज पर लगाना चाह रहा है तो दैट इज अनदर एग्जांपल। तो अब ये जो 4 से 6 सेगमेंट्स आ गए हैं ना, इसको आपने थोड़ा नैरो डाउन करके देखना है कि ये कौन से लोग हैं जिनको मेरी इंडस्ट्री लाइक मेरी सर्विस की जरूरत पड़ सकती है और ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। इसका एक चाहे आप डॉक्यूमेंट बना लें, चाहे आप लिख के रख लें कहीं पे, इस सारी चीज को एनालाइज करके, तो दैट इज गोइंग टू बी योर टारगेट ऑडियंस। इसको आप आईसीबी भी बोलते हैं, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। इसके बाद आपने इसको सेगमेंट करना होता है। लाइक कुछ एक चीजें होती हैं जो कि इन सब लोगों के अंदर कॉमन होंगी, विच इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स। लेट्स से मैंने लीड जनरेशन करनी है किसी कंपनी के लिए, मैं उसके लिए लीड्स निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं किसको रीच आउट करूंगा? मैं उसकी एजेंसी के फाउंडर को रीच आउट करूंगा या फिर उसकी एजेंसी और जो मार्केटिंग का फेस है उसको रीच आउट करूंगा और उसको मैं ऑफर पेश कर दूंगा। तो ये जो फाउंडर का कीवर्ड है या फिर मार्केटर का कीवर्ड है, दैट इज यू कुड से समथिंग दैट आई एम गोइंग टू सर्च आउट, जो कि मैं आप लिंक्डइन के ऊपर सर्च करूंगा। तो दोज आर सम क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स जो कि आपकी आईजीपी के अंदर होने चाहिए जिनको आप रीच आउट कर रहे हो। लाइक वो आपका जो सेगमेंट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड दोज पर्टिकुलर टर्म्स। इसी तरह से मैं अगर आपको Amazon PPC की एग्जांपल दूं, Amazon PPC इज बेसिकली एड्स फॉर Amazon प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनको नहीं पता। तो उसमें ये है कि अब Amazon की प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है मैंने, तो मैं किसको रीच आउट करूंगा? मैं उन लोगों को रीच आउट करूंगा जिनका Amazon ब्रांड है। वो मुझे अब किस तरह से मिलेंगे? वो डिफरेंट कीवर्ड के थ्रू मिलेंगे। वो मुझे सेल्स नेविगेटर एक टूल है लिंक्डइन का, परचेज करना पड़ता है, बट ये है कि उसके अंदर आप सर्च रिजल्ट्स डाल सकते हो, डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हो, वहां से आपको कुछ लोग मिल जाते हैं। तो अब फाउंडर्स हो गया, Amazon हो गया, Amazon ब्रांड अप्रूवल हो गया, Amazon का और कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, होलसेल हो गया, FBA हो गया, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के कीवर्ड्स आप ट्राई करें लिंक्डइन के ऊपर एंड देन यू कैन गेट प्लेंटी ऑफ रिजल्ट्स। उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इरेलेवेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको देख के आपको लगता है अच्छा यार इस बंदे का ब्रांड है, so he might have a need for this particular service. So that is how basically lead generation for your particular skill is done. ठीक है, थोड़ा सा TLDR था उस चीज का। तो इसमें आ गया आप क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स का पार्ट, दीज आर द कीवर्ड्स, ऑडियंस के जो सेगमेंट्स हैं, दीज आर ऑल द यूज केसेस, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि मल्टीपल लोग आपकी सर्विस की को अवेल कर सकते हैं। फिर स्क्रिप्ट्स एंड सीक्वेंसेस हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑन स्पॉट बैठकर मैसेजेस बनाना बेहतर लगता है, लाइक उनको लगता है कि एक प्रोफाइल को देख कर उसका कंटेंट एनालाइज करके यू कैन फाइंड सम वीक स्पॉट्स, वीक पॉइंट्स, एंड देन आप उन लोगों को रीच आउट करो उनके डीएम्स में एंड उनको कहो कि यार मैंने आपकी पोस्ट देखी थी अबाउट दिस स्टफ, आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन दिस स्टफ एंड आई हैव हेल्प्ड समवन अराउंड दिस कंटेंट अराउंड दिस कॉन्टेक्स्ट एज वेल बाय XYZ, जो भी आपका प्रोसेस है, एंड आई कैन डू द सेम फॉर यू। लेट्स से ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ स्क्रिप्ट की। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्रिप्ट कि आपने जो अपनी टारगेट ऑडियंस नैरो डाउन की है उनको आपने रीच आउट किस तरह से करना है। देयर इज प्लेंटी ऑफ वेज दैट कैन बी डन। एक तो ये है कि आप इंट्रिंसिकली अपनी जो आपकी अपनी यू कुड से रिजल्ट्स है ना, you could speak to that part कि अभी I've worked with this client which is also in your industry and we help them with this particular problem and I can also help you with this part if you are interested। अब वो ये है कि अब इसमें ना एक मसला ये आता है कि you have to see to it कि उस बंदे का ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो कभी कभार तो किसी का पेन पॉइंट होता है and you can find that weak link in their profile। like let's say मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी की प्रोफाइल लिखता हूँ, मुझे लगता है कि वो प्रोफाइल बिल्कुल बेकार है, तो आई विल ऑटोमेटिकली थिंक कि यार इस बंदे को प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, आई विल पिच हिम दैट सर्विस। इसी तरह से किसी की मार्केटिंग इट्स नॉट वर्किंग आउट, उसका प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, आप उसकी वेबसाइट पर जाते हो तो उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही, एंगेजमेंट नहीं आ रही, तो दैट इज अनदर फैक्टर दैट यू कैन लुक इनटू एज अ पेन पॉइंट एंड यू कैन यू नो you can speak to that part। so those are some of the pain points that you can speak to। इसी तरह से एक तो कॉन्टेक्स्ट होता है, लाइक आप अगले की पोस्ट्स पढ़ लो, अगर वो हायरिंग कर रहा है या फिर इफ दे आर लुकिंग टू स्केल, लेट्स से उनको फंडिंग मिली एंड दे आर स्केलिंग देयर ऑपरेशंस, तो इट्स पॉसिबल दे माइट नीड सम एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तो मैं बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम गोइंग टू मैसेज देम कि आई सॉ योर पोस्ट अबाउट स्केलेबिलिटी एंड आई हेल्प एजेंसी स्केल इस तरह से, तो आई वुड लाइक टू कॉल यू ओवर फॉर अ कॉल।
ठीक है, और फिर कॉल पे यू कैन ट्राई टू कन्विंस देम. सो दैट इज अ बिट अबाउट स्क्रिप्ट्स. एंड देन सीक्वेंसेस ये होता है कि एक सीक्वेंस आप बना लेते हो, लाइक पहला मैसेज आपने सेंड किया, देयर आर टू वेज दैट कन्वर्सेशन कैन गो, या थ्री वेज या मल्टीपल वेज. मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ. इट कुड ईदर बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इट कुड ईदर बी अ नेगेटिव रिस्पॉन्स, और इट कुड ईदर बी नो रिस्पॉन्स एट ऑल. ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की केस में आपने उनको क्या मैसेज करना है, नेगेटिव केस के रिस्पॉन्स में क्या मैसेज करना है, एंड देन इन नो रिस्पॉन्स केस में हमने क्या मैसेज करना है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग सीक्वेंसेस. अब वो ये है कि अब आई कैन नॉट स्पीक टू दिस पार्ट, लाइक मैं अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके बात कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई यूनिवर्सल नहीं है चीज. लाइक जो भी इंडस्ट्री है उसके अपने अलग प्रॉब्लम्स होंगे, अपने अलग उसकी आईसीपी होगी, अपने अलग सॉल्यूशंस होंगे. तो देयर इज डिफरेंट वेज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने उस चीज को किस तरह से फिगर आउट करना है, सीक्वेंसेस कैसे बनाने हैं, स्क्रिप्ट कैसे बनानी है. मैंने आपको थोड़ा बहुत साइंस बता दिए हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड बी लुकिंग इनटू. फिर आ जाता है आपका सीआरएम इज बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जितने लोगों को आप रीच आउट कर रहे हो उनको एक जगह पर लिख के रख लो, गूगल शीट बना लो जिस तरह से, और आपको ताकि ट्रैकिंग मिल जाए कि यार मैंने इस बंदे को रीच आउट किया था, इसको किया था, इसने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया, एंड सो फोर्थ. इस तरह से लाइक आपको एक पता हो कि मैंने वैसे तो ये चीज आपको अगर तो आप ग्रैन्युलर लेवल पे कर रहे हो ना, एक प्रोफाइल पे कर रहे हो, तो वो आपके अपने चैट बॉक्स में भी आपको मिल जाती है. लिंक्डइन में आपका इनबॉक्स है, उसमें जाकर आप देख सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस तरह मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ. मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए लीड जनरेशन कर रहा हूँ, पूरी पूरी लेट्स से पूरी एक और एजेंसी के लिए लीड जनरेशन कर रहा हूँ. मैं एक स्किल के लिए नहीं कर रहा, मल्टीपल स्किल्स के लिए मल्टीपल चैनल्स के ऊपर आउटरीच कर रहा हूँ. मुझे सीआरएम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप अगर ग्रैन्युलर लेवल पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्किल को पुश कर रहे हो तो दैट इज इररिलेवेंट ऑफ इट. बाकी क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे एंड से यही हैं कि try different things out, test different things out, and track your progress, or keep things which are working out, discard things which aren't working out. और कंटेंट आई वुड से जो है ना, कंटेंट सेल करता है, कंटेंट पर फोकस करें एंड हाउ यू कैन स्ट्रीमलाइन दैट कंटेंट, और उसको मल्टीपल डायमेंशन से मल्टीपल चैनल्स पर पुश करें. और बी क्रिएटिव विद इट. आई वुड से सिर्फ वो चीज़ें ना करें जो बाकी लोग करें, नई चीज़ें भी ट्राई करें. देयर इज रूम फॉर न्यू थिंग्स एज वेल. एंड यही चीज़ देखिए लिंक्डइन पर बहुत एक ही तरह का कंटेंट आ रहा होता है. लोगों का कंटेंट मैं आपको समराइज कर देता हूँ. एक पोस्ट आपको इस तरह मिलेगी, 1000 पोस्टें मिलेंगी न्यूज फीड के ऊपर कि पीपल आर डूइंग दिस रॉन्ग, यू कैन डू दिस वे. ठीक है, तो ये लाइक हर बंदा अपनी एक मेंटालिटी के साथ जा रहा होता है. आई वोंट सजेस्ट कि आप जो है ना सिर्फ इसी तरह का कंटेंट पुट आउट करें. बी मोर क्रिएटिव विद इट. टेम्पलेट्स में अपने आप को बिल्कुल शट ऑफ ना कर दें. तो दैट इज ऑन माय साइड. बाकी कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट. आई वुड से कंसिस्टेंट रहें. लाइक कुछ लोग होते हैं 3-4 महीने करके या 2 महीने करके रिस्पॉन्स नहीं आता छोड़ देते हैं. तो डोंट बी दैट पर्सन. और इसको कंसिस्टेंट रखें. आपको कहीं ना कहीं से उसका कोई ना कोई बेनिफिट निकल आता है, और द रेस्ट इज अप टू यू कि आप उसमें से बेनिफिट ड्रॉ किस तरह से करते हैं और आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर. दैट्स इट फॉर माय पार्ट. अब किसी का कोई Thank you क्वेश्चन so है तो much. आप. Yes, now we will move toward our questions and answer session. I believe most of us have a clear idea कि क्या LinkedIn है, किस तरह से ब्रांडिंग करनी है, इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से स्ट्रेटजीज यूज की जा सकती हैं, और कंटेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं. तो मैं वन बाय वन आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, द बेस्ट वे टू आस्क क्वेश्चन इज either raise your hand or drop the query in the chat box. तो आप अपनी क्वेरीज यहाँ पे चैट बॉक्स में करें या फिर अपना हैंड रेज करें. सबसे पहले यहाँ पे एक है, आई बिलीव ईशा का क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट वेरिफिकेशन बैज. तो इसके बारे में बता दें अहमद. अच्छा, वेरिफिकेशन बैच जो है ना वो आपको तब मिलेगा जब आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई ऑफिशियल ईमेल मिल जाए. जिस तरह से अब लाइक मुझे मिला हुआ तो है नमल का, वो वर्क नहीं कर रहा हूँ. मैंने खुद भी अपनी यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन से बात करनी है. बट ये कि इफ यू हैव एक्सेस टू योर प्रोफेशनल ईमेल, जो कि आपका ऑफिशियल ईमेल होता है नमल का, जिस तरह से हमारा .namal@, या .edu.pk समथिंग लाइक दैट, उस डोमेन में जो आपका ईमेल होगा ना, जो आपने एजुकेशन ऐड की हुई है, उसके थ्रू आपको जो है ना, इफ यू एंटर दैट तो आपको मिल जाएगा. यार एक्सपायरेशन कोई मसला नहीं होता. आई डोंट थिंक एक्सपायरेशन में मसला होना चाहिए. लाइक अगर एक बार आपने वेरीफाई कर दिया तो इट रिमेन्स. आई थिंक, आई एम प्रीटी श्योर. बल्कि क्योंकि मेरे अभी एक कॉलीग ने किया, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में है, तो उसने अपने ईमेल से किया था वेरीफाई. एंड देन टू कीप इट गोइंग, आई थिंक उसने ना ये जो आपकी क्यूरी है ना, उसमें उसने ये किया था कि ही
he enrolled himself again in the next degree, क्योंकि वो कर नहीं रहा basically, like उसने उसको बस ऐड कर दिया for like उसको कंटिन्यू रखने के लिए. That is what he did. You could also do that. एंड इसके अलावा अहमद शायद न्यू एक है कि पासपोर्ट के जरिए भी कुछ एक वेरिफिकेशन हो रही है. पासपोर्ट के थ्रू भी हो जाती है. यस, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है. वो आप ट्राई करके देख सकते हैं. मेरे पास असल में पासपोर्ट नहीं था, मैं ट्राई करना लाइक मैंने कोशिश की थी उस पर ट्राई करने की, बट ये है कि वो मैं पहले चाह रहा था कि लाइक आईडी कार्ड से हो जाए, व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट वो पासपोर्ट के थ्रू ही होती है. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच. आई होप ईशा आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी होगी. इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? इसके अलावा अहमद अपनी यस नाउ मैं अगर मुझे जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, नवीद कामरान आप पहले करेंगे, उसके बाद अहमद अली, तो वन बाय वन. जी नवीद कामरान, ओवर टू यू. मेरा क्वेश्चन ये है कि हर किसी के पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है कि उसने कोई क्लाइंट डील किया हुआ हो, कोई फ्रेशर होता है सर्विस सीख के ही अभी आया होता है और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाता है, तो वो क्या करे, मतलब कि अपने क्लाइंट्स के साथ जो उसका एक्सपीरियंस रहा वो शो नहीं कर सकता, कोई काम उसने नहीं किया हुआ किसी क्लाइंट के लिए वो शो नहीं कर सकता, तो किस तरह वो अपनी प्रोफाइल को मैनेज करेगा उस सेक्शन में? ठीक हो गया, गुड क्वेश्चन. अच्छा, इसमें ये है कि दो चार चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. एक तो यू कुड ऑफर अ फ्री मॉकअप. लेट्स से प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्किल है, आप एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो यू कुड ईदर ऑफर, लेट्स से एक मॉकअप आप ऑफर कर सकते हैं, या डिजाइनिंग की चलो बात कर लेते हैं. डिजाइनिंग में आई थिंक मॉकअप बनाना इजी होता है. लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप रीच आउट कर रहे हो अगले को, तो यू कुड क्रिएट अ फ्री मॉकअप फॉर दैट पर्सन. एक या दो डिजाइन आप उसको बनाकर जस्ट टू क्रिएट सम अथॉरिटी, लाइक आप उसको ये बताने के लिए कि आपको काम आता है, यू कैन क्रिएट वन और टू फ्री मॉकअप्स. एक तो वो चीज होती है. द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज डू अ फ्री ऑडिट. लेट्स से एसईओ कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि यार मैं आपकी वेबसाइट का फ्री ऑडिट करके दूंगा एंड उसका एक डॉक्यूमेंट आपको बना कर दूंगा, एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप अपना एसईओ का सारा काम मुझसे करवा लेना. तो दोज आर सम थिंग्स दैट कैन गिव यू कंपैरेटिव एज. Okay, Naveed, hope it's answerable and comprehensive. Now, moving further, Ahmed Ali, yes, over to you. जी अहमद, यू आर नॉट ऑडिबल. माइक को अगर देख लें कि कोई इशू नहीं, या फिर हैंड फ्री अगर लगी हुई है तो उतार लें. ओके. अच्छा अहमद, आप अपनी क्वेरी जो है वो कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स, तो वहां से इंशाल्लाह अहमद उसको रिजोल्व भी करेंगे और बताएंगे भी. इसके बाद है लारेब गफ्फार. आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, इट्स हार्ड टू मेंटेन अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह, तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट, तो बता दें इसके ऊपर. जी अहमद. लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से अपलोड करने में इशू आ रहा है, या फिर किस पर्सपेक्टिव में आप लाइक इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन पे ना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होगी. Okay. Lareb, can you unmute yourself and explain the question कि क्या आप एक्चुअली में आस्क कर रही हैं? ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट, यस दे आर डूइंग ग्रेट एंड वो कर रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलते रहते हैं, तो आप क्या क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव बता दें जरा. ओवर टू यू लारेब. अस्सलाम वालेकुम. यस मालूम. मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा कंसर्न ये है कि अभी मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, वो बहुत पुराने भी हैं और नए भी हैं, मैं अपलोड कर रही हूँ. तो अभी मुझे चाहिए ना कि मैं और इस तरह के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको उनकी तरफ भी मेरा मतलब जो लिंक्डइन है वो मुझे लेके जाए. तो आई डोंट नो कि मैं टैग किसको करूँ या मैं किस तरह उस जैसे आप सोशल मीडिया पे मतलब बाकी जो मीडियाज है उसमें आप थोड़ा बहुत सर्च करते हो तो उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं. मुझे लिंक्डइन का नहीं पता कि कैसे आती हैं या कैसे ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं जो कि मेरी फील्ड से या मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक है, तो कैसे टैग करना और ये सब चीज़ें में थोड़ा सा इसमें कंसर्न है. कुछ कीवर्ड्स की बात है. इसमें कुछ चीजें तो इस तरह से ना कि आप जो है ना, एक तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ग्रुप्स वगैरह फॉलो किए हुए हैं ना, या पेजेस फॉलो किए हुए हैं, तो
लेट्स से ना, अगर आप सोशल एक्टिविज्म की बात करें तो मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का ना पेज सर्च कर लेता हूँ। तो इधर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ना आपको उसमें मिल जाएंगी, सिमिलर प्रोफाइल्स इधर आती हैं। अब ये देखें, आपको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, दूसरी मिल गई, ठीक है, मल्टीपल और मिल जाएंगी। तो कुछ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जब आप एक को सर्च करेंगे ना तो आपको मल्टीपल उस तरह के साइट पे मिल जाएंगे। जो आप इवेंट्स की बात कर रही है ना, इवेंट्स में ये है कि इधर नॉन प्रॉफिट, लेट्स से नॉन प्रॉफिट का एक कीवर्ड में सर्च कर लेता हूँ और हम चले जाते हैं इवेंट्स के अंदर। और इसको अगर आपने मजीद फिल्टर डाउन करना है, अब ये आपके पास ना नॉन प्रॉफिट इवेंट्स सारे आ गए। अब इसमें हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ आपके लिए रिलेटेबल हैं, कुछ नहीं हैं। तो उसको मजीद फिल्टर डाउन करने के लिए आप यहाँ पर कंट्री का भी एक फिल्टर लगा सकते हैं। अब लेट मी सी इफ इट गिव्स मी द ऑप्शन। इधर फिल्टर्स का एक ऑप्शन होता है वैसे, जॉब्स में ही सर्च करना। अच्छा, फिल्टर का ऑप्शन मुझे नहीं दिया, बट ये है कि इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये फिल्टर आपको दिया हुआ है इवेंट्स का, इधर से आपको इवेंट्स मिल जाएंगे। सही है, बहुत सारे पेजेस हैं, आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एंड सेकेंडली, जब आप एक को सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल पेजेस के लिंक्स उधर लाइक और भी मिल जाएंगे इन इन यू कुड से पीपल आल्सो व्यूड सेक्शन में। तो दिस इज यू कुड से टू वेज जिसके थ्रू आपको अपडेट्स मिल सकती हैं। अगर आपने जो है इस तरह से ग्रुप्स होते हैं, ये देखें अब आपको, ये तो खैर कंपनीज हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं। अब आप अपनी जो डोमेन है ना उसके अंदर ग्रुप्स को सर्च आउट करें, सीक आउट करें। अब ऐसे कलेक्टिव ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर चीज़ों की अपडेट्स आ रही होती है। जिस तरह मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था सीड स्टेज कंपनीज को रीच आउट करने के लिए, लाइक जिन कंपनीज को फंडिंग मिल रही है, उनका एक ग्रुप था जिसके अंदर रोज अपडेट आती थी कि फ्लाई एजेंसी को या कंपनी को आज इतनी की फंडिंग मिली है। तो यू कुड सीक आउट ग्रुप्स लाइक दैट। अगर ये जिस तरह से ग्रुप का ऑप्शन है, you can also see to the groups part। यहाँ पर भी आपको जिस तरह ये जॉब्स इन एनजीओ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सो एंड सो फोर्थ। बट ये है कि इसमें ना एक फिल्टर होता है लोकेशन का, वो आई थिंक सेल्स नेविगेटर में भी मिलता है एंड इधर भी मिलता है। अब पता नहीं शो क्यों नहीं हो रहा, लेट मी सी, एनजीओ सर्च करके देख लेते हैं। इधर आता है, हाँ, ये ऑल फिल्टर्स में। इधर ना आपने पाकिस्तान की लोकेशन सेट करके ना आप शो रिजल्ट्स करने। अब सिर्फ पाकिस्तान के सर्च रिजल्ट्स आएंगे। अभी तो खैर ये वो लोग, ये सिर्फ लोग आ रहे हैं अभी। जो आप इधर से मजीद इसको टॉगल करेंगे ना इवेंट्स के सेक्शन में या फिर मजीद और फिल्टर्स को लगा के, तो ये कि आपको जो है ना वहाँ से कुछ मजीद पेजेस भी मिल जाएंगे, ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, इवेंट्स भी मिल जाएंगे। आई होप दैट आंसर्स दैट। Yes, I believe it's answered to Larib query. Okay, ईशा, आपने ग्रुप चैट में काफी लंबा क्वेश्चन एक क्वेरी रखी है, प्लीज आप अनम्यूट करें और उसको जरा बताएं। ओवर टू यू। Assalamu alaikum. Yeah, I have a question. I have 3241 connection in LinkedIn, but impressions of my post are not so more. That's only 1500 or उससे less होते हैं. How would it boost or enhance my analytics and impressions of my post? ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये है कि लाइक ठीक है, इम्प्रेशंस एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है, बट उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो आपकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब वही बात मैं कर रहा था कि नेटवर्क जो है ना, इट्स नॉट इक्वलेंट टू इम्प्रेशंस। लाइक जरूरी नहीं है कि आपके 10,000 कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी पोस्ट पर 5 लाख आ रहे हो। उसकी रीजन ये होती है कि आपका जो कनेक्शन है ना वो आपकी स्किल के हिसाब से नहीं बिल्ड हुआ हुआ। लाइक उसके आपके कनेक्शन के अंदर जो लोग हैं ना, वो आपकी स्किल को रिकग्नाइज नहीं कर रहे और उनका आपके कंटेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो मेरी नंबर 1 टिप इसमें ये होगी कि आप अपने कनेक्शंस को इस तरह से अलाइन करें तो उसमें वही लोग हों जो आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जिनके कंटेंट के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा की मैट्रिक ये होता है कि हम लोगों के कंटेंट के साथ नहीं इंटरेक्ट कर रहे होते। लाइक आप उनके कंटेंट के ऊपर कमेंटिंग एंड लाइक्स एंड इंटरेक्शन करेंगे तो वो आपके कंटेंट के साथ भी करेंगे। एंड इफ दैट इज नॉट हैपनिंग देन आप लाइक you can go out of your way and reach out to those people and you can say कि हम एक इंडस्ट्री में हैं, you can like
स्पीक टू देम अ बिट टू दैट पार्ट के उनका एक्सपीरियंस कैसा है एंड वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, एंड देन you can take that conversation towards कि हम क्यों ना we help each other build each other's brand by engaging with each other's content on a daily basis. So that is something that you can do. तो ये एक organic approach है by which you can get more likes, more engagements. इसी तरह से groups भी होते हैं LinkedIn के ऊपर. You can establish yourself as an entity in there. दूसरा एक हैक और मैं आपको बताता हूँ, लाइक अगर आप इवेंट्स अटेंड करने वालों में से हैं, तो वैसे तो अभी एक इवेंट हो रहा है, तो अब आप जाए एंड यू कैन राइट अ पोस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेमिनार एंड यू कैन टैग मल्टीपल पीपल. लेट्स से इस फाउंडेशन को आप टैग कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, अंबर को टैग कर सकते हैं, एंड उससे ये होगा कि मेरे कनेक्शन में जितने लोग हैं या नाज फाउंडेशन के कनेक्शन में जितने हैं एंड अंबर के कनेक्शन में जितने हैं, वो सारे लोग आपकी पोस्ट भी देख सकेंगे पहली चीज, एंड देन उसके साथ इंटरेक्ट भी करेंगे. तो इट विल गेट मोर आइज टू योर कंटेंट. सो द मोर events you attend and the more people you tag in your post, the more eyes you get there. So that is another way you can do it. All right, comprehensive. I believe Isha also got the right answer. इसके अलावा अहमद अली ने भी कुछ बताया हुआ है अपना एक पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग वेरिफिकेशन बैच. मस्ट रीड दैट एज वेल. इसके अलावा गाइज यहाँ पे बहुत सारे जब हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए, जब हमने ये लिंक्डइन का सेमिनार प्लान किया था, तो रिस्पॉन्सेज में काफ़ी ऐसे लोग थे जिनकी प्रोफाइल नहीं थी. वो जस्ट देखना चाह रहे थे कि व्हाट इज एक्चुअली लिंक्डइन. तो हमारी कम्युनिटी में काफ़ी एक लैक है लिंक्डइन के बारे में कि लिंक्डइन क्या है और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. तो अहमद, इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना पर्सपेक्टिव दें, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं कि जो अभी तक लिंक्डइन नहीं यूज कर रहे. वो सिर्फ यहाँ पे इस वजह से आए कि इम्पोर्टेंस पता चल सके एज अ एजुकेशनिस्ट, एकेडमिकली और प्रोफेशनली भी. तो थोड़ा सा उसको ब्रीफली आप समराइज, आपने पूरे के पूरे सेशन में एक तो समराइज किया है कि किस तरह से आप प्रोफेशनली कर सकते हैं. अभी भी जस्ट उन्हें फॉर द सेक ऑफ दम एक दफा उसे समराइज कर दें, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया उसकी तरफ बढ़ते हैं. बिल्कुल. लिंक्डइन का ऐसे है कि जो कॉमनली नोन नोशन है ना, वो ये है कि लाइक आप सिर्फ जॉब सर्च के लिए इसको यूज करते हो एंड इट सर्व्स एज अ सीवी, जिस तरह से Indeed.pk है. तो आई थिंक डिफरेंट, मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द ओनली वे यू शुड बी यूजिंग लिंक्डइन. श्योरली जॉब सर्च के लिए आपको यूज करना चाहिए. आपको हायरिंग के लिए जो भी लाइक नोटिफिकेशंस हैं उनको, रिमाइंडर्स को ऑन रखना चाहिए, एंड यू शुड अप्लाई फॉर जॉब्स. लाइक ये वाली जो यूज केस है इसको आप इंडोर्स करें, इसको यूज करें. दैट शुड बी अ प्रायोरिटी एज वेल. बट आई वुड से उसके साथ अपने आप को लिमिट ना करें. लाइक उसमें बहुत ज़्यादा आई वुड से सैचुरेशन ऑलरेडी है ऑन द हायरिंग साइड. और हायरिंग साइड पे आप लिमिट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज जो चीज़ आप दूसरों को करके दे रहे हैं, इफ़ यू कैन डू इट फॉर योर ओन सेल्फ एंड यू कैन डू इट बेटर एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन टर्म्स इन योर ओन आवर्स बाय मेकिंग मोर मनी देन यू वुड मेक अनदर पर्सन बाय डूइंग इट. So I would suggest कि why not build that thing for your own self on the side rather than just eyeing it from the perspective of a job. तो मैं यही कहूँगा कि लिंक्डइन होना तो हर बंदे के पास चाहिए. एंड अगर इफ द क्वेश्चन इज कि क्यों होना चाहिए, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. एक तो आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी बन रही है. लाइक अगर आप लिंक्डइन बनाने के बाद अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लें एंड थोड़ा बहुत नेटवर्क एंड उस पर काम करें, तो व्हेन यू सर्च योर नेम ऑन गूगल आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल काफी ऊपर आएगी. सो दैट गिव्स यू एंड यू कुड से एक आइडेंटिटी आपको मिलती है. ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट. इस तरह से जॉब्स के लिए, जॉब्स के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग टूल. एंड देन यू कैन आल्सो यूज इट फॉर पर्सनल लर्निंग. यू कैन आल्सो यूज इट फॉर पुटिंग कंटेंट आउट देयर, फॉर डॉक्यूमेंटिंग योर पर्सनल एज वेल एज योर एकेडमिक जर्नी, एज वेल एज योर एक्सपीरियंस ओरिएंटेड जर्नी, एंड देन योर स्किल ओरिएंटेड जर्नी. आपके लिए वो लाइक एक डॉक्यूमेंटिंग का काम कर रहा है, regardless of what professional or academic end of like आप अपने कौन से एंड को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो उन सारी चीज़ों पे पूरा उतर रहा है. लाइक ये वाली चीज़ें फेसबुक, ट्विटर और ये प्लेटफॉर्म्स आपको नहीं ऑफर कर रहे, जो आपको लिंक्डइन एक प्रोफेशनल लेवल पर वो चीज़ ऑफर कर रहा है. सो लिंक्डइन आई वुड से फेसबुक वाले एंड को मिला रहा है प्रोफेशनल एंड के साथ. सो दैट इज वन मैसिव बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट. Exactly. Thank you so much. Now, there is a question regarding how we can find the job related job field. I believe just a minute. इससे पहले भी क्वेश्चन है, how we can find relevant keyword related to a field. जाहिद हसन के ही दो क्वेश्चन है, तो दोनों को एक ही में find job के related और relevant keywords, ये दोनों इसके पर जरा बता दें. Over to you.
कीवर्ड्स का ये है कि आई वुड से कि आप एक तो एआई को यूज करें इसमें, ठीक है। एक तो आप ये लाइक चैट जीपीटी को आप इसमें यूज करके डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई आउट कर सकते हैं। आप अपनी लेट्स से अगर एसईओ की फील्ड है या फिर वीडियो एडिटिंग की फील्ड है या फिर मार्केटिंग की फील्ड है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिकरिंग एंड सर्चेबल टर्म्स होती हैं जिनको लोग सर्च आउट कर रहे होते हैं, या फिर एल्गोरिदम में मल्टीपल जगह पर वही टर्म्स पुश हो रही होती हैं। तो जिसमें सेल्स, ठीक है, बी टू सी, लाइक मैं मार्केटिंग की अगर बात करूं तो यू कैन ट्राई आउट बिजनेस मॉडल्स। इसी तरह से इफ आई वर टू स्पीक टू वीडियो एडिटिंग साइड, तो मैं कहूँगा एनिमेशन, इसी तरह से 3D या मोशन या समथिंग लाइक दैट। तो वो कीवर्ड्स हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो बंदा उसमें काम कर रहा होता है उसको काफी हद तक उसका आइडिया होता है। जिस तरह मैं अगर आप लीड जनरेशन की बात बताऊँ, मेरी चूंकि वो फील्ड है, तो आई एम प्रेटी श्योर कि मैंने अगर इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी प्रोफाइल में, तो मैं लिखूंगा ग्रोथ एक्सपर्ट वाला कीवर्ड यूज करूंगा, मैं ऑप्टिमाइजेशन वाला कीवर्ड यूज करूंगा, B2B वाला कीवर्ड यूज करूंगा, लीड जनरेशन वाला कीवर्ड यूज करूंगा। इसी तरह से आई वुड आल्सो लुक अ बिट इनटू के एल्गोरिथम के ऊपर कौन से वर्ड्स जो है वो रिपीटेटिवली मेरी इंडस्ट्री के अंदर रिपीट हो रहे हैं या आ रहे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी फॉर दैट, लाइक वो आपको कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना के दे देगा। तो उसमें ये है कि आपको कोई हार्ड एंड फास्ट कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको ट्राई आउट करना पड़ेगा iteratively, एंड यू विल हैव टू टेस्ट आउट डिफरेंट कीवर्ड्स टू सी डिफरेंट रिजल्ट्स। तो वो ये है कि यू विल हैव टू सी इट बाय टेस्टिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। बाकी जहाँ तक जॉब की बात है ना, जॉब करना इंटायरली, इफ वी आर टू हैव a seminar on, like let's say इस पे कंटिन्यूएशन होती है, तो जॉब इज एन इंटायरली डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। क्योंकि जो लिंक्डइन का जॉब साइड है ना, वो एक समझ लेके टैब ही एक और है। उसको मैं खोलूंगा, उसको मैं एक्सप्लोर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि इधर से रिमाइंडर्स लगाने हैं, इधर से आपने इफेक्टिवली जॉब्स को सर्च आउट करना है। वो एक या दो सेंटेंसेस में उसको समराइज करना पॉसिबल नहीं होगा, लाइक उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगी। तो दैट इज व्हाई आई वुड से कि इस पे थोड़ा सा या तो आप अपने लेवल पर थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें, या फिर लेट्स से इफ यू आर टू have a seminar in the long run. Yes, definitely. If the audience want, we can arrange a seminar on this as well, inshallah. इसके अलावा गाइज डू शेयर, मुझे लगता है कि किसी और का कोई क्वेश्चन अभी तक क्वेरी है तो मुझे फटाफट बताएं ताकि हम लोग फर्दर प्रोसीड करें। अदरवाइज वी आर जस्ट हैव लिटिल टाइम लेफ्ट, सो वी हैव टू जस्ट क्लोज इट। ओके, देयर इज नो वन हु हैव एनी क्वेरी। ऑलराइट, सो अहमद की सबसे पहले तो प्रोफाइल जो है वो लिंक, अहमद अभी आप चैट में अपनी जो है लिंक्डइन प्रोफाइल भी शेयर कर दें, सो दैट अदर पीपल कैन आल्सो कनेक्ट विद यू, एंड इफ दे वांट टू हैव एनी क्वेरी दे कैन डीएम यू डायरेक्टली। इसके अलावा ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा अहमद की प्रोफाइल। इसके अलावा बाकी जो इन्होंने रिसोर्सेज प्रोवाइड की हैं इस ट्रेनिंग के दौरान जो डिस्कस हुए हैं वो भी ग्रुप में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और फर्दर जो भी इंशाल्लाह इसके बाद जो है वी कैन आल्सो प्लान अ नेक्स्ट वेबिनार on job hunting as well. So this is the whole training and masterclass. I hope everyone had get benefit from it. And सबसे पहले तो मैं अहमद का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी from the whole team of Young Nas Foundation and whoever has participated in this webinar. सो ये सबसे मेन चीज थी। किसी की कोई क्वेरी है दे कैन रीच अस ऑन अवर सोशल मीडिया लिंक्स एंड ऑन अवर लिंक्डइन पेज। तो वहां पर जाकर आप लिंफा नास के पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी हैव अ लॉट ऑफ यू कैन से यूथ डेवलपमेंट जो है वो इनिशिएटिव्स हैं, तो इंशाल्लाह उसमें टेक पार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, पाकिस्तान Thank you so जिंदाबाद। much. Thank you so much, Hafiz, and thank you for providing me the opportunity.